નમસ્તે સાહેબજી. અને આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સાહેબ, આપનું ઘણું જ મોટું મન છે. બધાને અવાજ આવે છે? અમને લોકોને ઘણી બધી મુશ્કેલીમાંથી પસાર થતા હોય છે. ઘણા બધા લોકો માર્ગદર્શન આપતા હોય છે, પણ અમે લોકો નહોતા કરી શકતા. સાહેબ, આપે જે રીતે ફોલોઅપ આપ્યું, જે રીતે કોન્ફિડન્સ આપ્યો, એના કારણે જ અમે લોકો આમાં આગળ વધી શક્યા છીએ. આપે મોટું મન રાખીને કીધું કે ઉપરવાળાનો હાથ છે, પણ આપનો ઘણો જ પુરુષાર્થ છે. અને આપણે જે રીતે કર્યું એના કારણે જ અમે લોકો આગળ વધી શક્યા છીએ. મારી હિસ્ટ્રી આપું તો હું અનિલ શાહ, ભાવનગરથી, ઉંમર 64-65 વર્ષ. મને 1990 એટલે 36 વર્ષથી થાઇરોઇડ છે, અને છેલ્લા 16 વર્ષથી મને ડાયાબિટીસ છે. અને ઘણા જ બધા ડોક્ટરો પાસે, વૈદ્યો પાસે અથવા હોમિયોપેથિક ડોક્ટરો પાસે ગયા, અને એ લોકો દવા આપ્યા હતા. એ લોકો કહેતા પણ ખરા કે ભાઈ તમે આ વસ્તુ કરો, પણ એના માટે કોઈ ફોલોઅપ અથવા તો અમને કોઈ પ્રોત્સાહન નહોતું મળતું. આપની પાસે સાહેબ આવ્યો તો પહેલે દિવસથી જ આપે કીધું કે આપણેથી 5 મિનિટ થાય તો 5 મિનિટ પણ શરૂઆત કરો. એના પછી આપની ટીમ કન્ટિન્યુ એના માટે ફોલોઅપ પણ લેતી. કે એક વખત તો એવું હતું કે મનમાં કે આ બધી વસ્તુ કે છે, પણ આ બધું મારેથી થશે નહીં. મનમાં જરા કે ઉત્સાહ નહોતો, કે એવો ઉમંગ પણ નહોતો કે હું આ કરી શકીશ. એમ થાય કે દવા આપે ખાઈ લઈએ, સારું થઈ જશે. પણ આ મનમાં જે કોન્ફિડન્સ નહોતો, એ આપના કહેવાથી અને આપની પ્રેરણાથી અને આપના આશીર્વાદથી આ બધી વસ્તુઓ મનમાં ઉત્સાહ પણ જાગ્યો. અને છેલ્લે જે આપને નો ગ્રેન છે એમાં પણ જોડાણો, અને પૂરતા પ્રયત્નથી કર્યું. એક સમય એવો હતો કે મને એમાં કોઈ વિશ્વાસ કે એટલો કોન્ફિડન્સ નહોતો. એની બદલે આપની પ્રેરણાથી એ બધું થયું. નો ગ્રેન કરવાથી શરીરમાં દુખાવો ઘણો ઓછો થયો, શરીરના સોજા ઘણા બધા ઓછા થઈ ગયા. અને સ્ફૂર્તિ તો જે એમ પહેલા એમ હતું ને કે 10 મિનિટ વોકિંગ કરવા જવું હોય તો આળસ આવતી, એની બદલે હવે કામ કરવાની સ્ફૂર્તિ વધી, કામની અંદર પણ મન વધ્યું, અને મન પણ એકદમ પ્રસન્નચિત રહે છે. અને કામની ક્વોલિટી પણ બદલી ઘણી બધી. એટલે આ બાબતમાં સાહેબ આપનો ઘણો જ આભાર, આપની ટીમનો પણ આભાર અને ધન્યવાદ ખૂબ ખૂબ. અને જે ગ્રુપમાં બધા મેમ્બરો છે એ લોકોનો પણ ધન્યવાદ, કે એ લોકોના કારણે મને પણ પ્રેરણા મળતી રહી.
મારું નામ મીરાબેન પારેખ છે, રાજકોટથી બોલું છું. જી મને ઘણી બધી તકલીફ હતી સુગરમાં, પગને બહુ દુખતા, ઊભી ન રહી શકતી, પણ સરની સાથે જોડાણી પછી મને ઘણો ફાયદો છે. અત્યારે મારે સુગરની દવા પણ બંધ છે ને કોલેસ્ટ્રોલની દવા પણ બંધ થઈ ગઈ છે. અને એટલી મારા શરીરમાં સ્ફૂર્તિ છે ને કે હું 4 માળનું મકાન છે પણ જાતે હું બધું કામ કરું છું, એટલી મારામાં સ્ફૂર્તિ છે. અને સરની ડાયટ અને મેડિસિન અને એક્સરસાઇઝ ને યોગા ઈ ડેઈલી ચાલુ છે. 15 મિનિટ એક્સરસાઇઝ ને 30 મિનિટ યોગામાં જાઉં છું. અડધો કલાક વોક કરું છું, તો એનાથી મને ઘણો ફાયદો છે. અત્યારે મારું સુગર ને બીપી બે નોર્મલ જ છે, કોલેસ્ટ્રોલ ને નોર્મલ છે. મને સરનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે મને નવું જીવન આવી ગયું. નવું જીવન માટે તમે પ્રયત્ન કર્યા છે. જો તમે તમારી ડાયટ ટીમ ને તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે મને પેલા કરતા ઘણો ફાયદો છે. ઓલું મને પગની તૂટ થતી, કામ કરવું ન ગમતું, પણ એને લીધે હવે મને એટલી સ્ફૂર્તિ રહે છે ને કે મને શેમાંય આળસ નથી આવતી. તો સાથ જોઈએ, બીજું શું જોઈએ છે કે માણસને આપણને આ બધા જ આપણે બધા એકબીજાને રિલેટ કરી શકીએ કે ભાઈ જ્યારે આવા કોઈ પણ રોગો હોય અને એની દવાઓ, એટલે રોગ હોય અને દવા લઈએ એટલે એનાથી કઈ રોગ મટતો નથી. પ્રોબ્લેમ ઇઝ દેટ કે એમાં તકલીફો નાની મોટી વધે, કે પગના દુખાવા, તોડું થવી, બળતરા થવી, એવી અલગ અલગ પ્રકારની કોમ્પ્લિકેશન્સ આવે. પણ જ્યારે આપણે પ્રોપર શરીરને જરૂરિયાત પ્રમાણે ડાયટ ને એક્સરસાઇઝને ફોલો કરીએ તો મીરાબેન તમને કેમ તમારી દવાઓ ઝીરો થઈ, સાથે તમારી સ્ફૂર્તિ. હવે વિચાર કરો કે ભાઈ તમે કંઈક કરી ના શકતા હોય, હવે તમે બધું જ કરી શકતા હો, તમારી તકલીફો દૂર થઈ ગઈ હોય તો બટ ઓબ્વિયસ છે. સિમ્પલી એટલું જ કહીશ કે ભાઈ ઉપરવાળાનો પણ આભાર માનજો અને આને આ વસ્તુ ફોલો કરવાની છે. આને આપણે કન્ટિન્યુઅસલી લાઈફ, કારણ કે ડાયટ અને એક્સરસાઇઝ આ એવી છે કે ભાઈ જે અલગથી આપણે પ્રયત્ન નથી કરવાની, ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ લાઈફ, એટલે આપણા જીવનનો એક હિસ્સો જ છે, અલગથી નથી. એટલે આને આપણે હંમેશા ફોલો કરતું રહેવાનું છે. રાજકોટ આ વિસ્તાર ડેફિનેટલી મળીશું અને તમને સન્માનિત કરીશું. લેટ્સ બિગિન ફોર ધ મીરાબેન. થેન્ક યુ સો મચ મીરાબેન કે તમે આવા સરસ પ્રયત્નથી શોર્ટ ટાઈમમાં આટલું સરસ રિઝલ્ટ લાવ્યા છો. એટલા માટે જ તમારું સન્માન કરી રહ્યા છીએ. આપણે મળીશું ત્યારે ડેફિનેટલી તમને સન્માનિત કરીશું. यस, थैंक यू सो मच. जून महीने में जो आपको चैलेंज मैं देना चाहता हूं वो है, मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से समझे, ये चैलेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये चैलेंज जिन्होंने एक्सेप्ट की है, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट के थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस उनकी लाइफ में है। ये है नो डिनर, नो फूड आफ्टर 8 PM। 1 महीने के लिए आपको 8 बजे के बाद पानी के अलावा कुछ नहीं लेना। अब ये क्यों, इसके फायदे क्या है कि भाई 8 बजे के बाद अगर हम ना खाना खाए तो क्या क्या चेंजेस हमारे अंदर आते हैं। ईट अर्लियर, लाई बैक। जितना हो सके उतना अर्ली खाना खाएंगे तो आप अच्छे, हेल्दी और वेल्दी रहेंगे। डिनर टाइमिंग इज हिडन हेल्थ वेरिएबल मोस्ट पीपल ओवरलुक। डिनर का जो टाइमिंग है ना, उसके पीछे ही आपका हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। भारत देश में आजकल 8 बजे के बाद ही खाना एक फैशन बन चुका है। 8 बजे के बाद नहीं, लेकिन जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए, नॉट डाइजेस्ट। यानी कि बॉडी को सूर्य अस्त के बाद खाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी एफर्ट कहीं और लगेगी। मेटाबॉलिज्म जो है ना, हमारा बॉडी जो है इंटरनल क्लॉक होता है, उसके लिए ये खाना जो आप खा रहे हैं वो कन्वीनियंस नहीं है। कोई लोग 7-8 बजे खा लेते हैं, लेकिन फिर टीवी देखते हुए, मूवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए मूंगफली के दाने खा लिए, थोड़ा सा आइसक्रीम खा लिया, थोड़ी सी चॉकलेट खा ली, कुछ गेस्ट आ गया तो चाय पी ली। बट वो कितना डेंजरस है वो आप अभी समझेंगे। हार्मोनल डिस्टर्बेंस आते हैं। लेट ईटिंग जो है वो इंसुलिन को डिस्टर्ब करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन को डिस्टर्ब करता है, मेलाटोनिन जो सोने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको डिस्टर्ब करता है। यानी कि लेट खाना
हमारे जो की हॉर्मोन्स है ये तीनों, इंसुलिन, कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन, उसको डिस्टर्ब करता है। और इसीलिए काफी लोगों को लेट खाने की आदत की वजह से हंगर स्पाइक आती है, यानी कि काफी लोगों को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को अचानक उठने का मन करता है, वो उठ के डायरेक्टली फ्रिज के आसपास डब्बे ढूंढते हैं और ठूस ठूस के खा लेते, बिकॉज उनका मेटाबॉलिक साइकिल, ये हॉर्मोन्स लेट नाइट खाने की वजह से डिस्टर्ब हो चुके। इनविजिबल क्लिप होते हैं, यानी कि मॉडर्न शेड्यूल साइलेंटली पुश डिनर लेट ईच ईयर, यानी कि एवरी ईयर्स मॉडर्न जो शेड्यूल्स है वो पहले के जमाने में 6 बजे से पहले खा लेते थे लोग, फिर 7 बजे से पहले, फिर 8 बजे से पहले, फिर 9 बजे से पहले, फिर 10 बजे, यानी कि लोग इसको नॉर्मल समझने लगे, लेकिन ये कंप्लीटली एबनॉर्मल है। आप देखिए कि भाई ये साइकिल कितना आपके अब अंदर के ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब करता है स्टेज वाइज। सबसे पहले तो आपका मेटाबॉलिक जो हॉर्मोन्स, यानी कि 8 बजे के बाद कोई भी अनाज खाया, दूध भी पिया, फ्रूट्स भी खाए, चने खा लिए, कुछ भी खाया 8 बजे के बाद, पानी के अलावा कुछ भी गया, तो सबसे पहले तो वो आपकी नींद को खराब कर, आपके ब्लड स्टेज 1 में क्या होता है, आपके ब्लड शुगर को एलिवेट करना, बढ़ाना, और इसीलिए इंसुलिन सेंसिटिव और रेजिस्टेंस या इंसुलिन प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होना, या फिर टाइप 2 डायबिटीज का कैपिटल भारत देश है। स्टेज 2 में क्या होता है, मेलाटोनिन जो है वो सप्रेस होता है, कम रिलीज होता है, और इसलिए लोगों को नींद कम आती है, या खाने के बाद बहुत लेट आती है, डीप स्लीप, अच्छी नींद नहीं आती। स्टेज 3 में ये होता है कि भी उनको बार बार सपने आना, नींद खुल जाना, वॉशरूम जाना। डीप स्लीप नाम की चीज ही नहीं थी, यानी कि वो कहावत है ना, घोड़े बेच के सोना, वो तो आती ही नहीं, बहुत रेयरली लोगों को आती। एंड बिकॉज ऑफ ये सब चीजों के पीछे जो है वो आपका 8 बजे के बाद खाना, सुबह उठने के बाद थकावट फील होना, जैसे नींद ली ही नहीं है, आंखें, स्वेलिंग, थकावट, जैसे लग रहा है कि भी सोया ही नहीं हूं मैं, इसकी पीछे की वजह आपका खाना है। और स्टेज 5 में फिर उसके बाद ये सब कन्वर्ट होता है डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, ओवर थिंकिंग में, हर चीज, ब्लड प्रेशर आता है, हर बीमारी आती है। मेटाबॉलिक डिसफंक्शन कहते हैं उसको। अगर आपने 8 बजे से पहले खाना स्टार्ट कर दिए तो आपकी बॉडी बहुत इजीली डीप स्लीप में जा सकती, और उसके पीछे की साइंटिफिक वजह है ऑप्टिमल डाइजेशन विंडो होता है, यानी कि 7 बजे से पहले अगर आपने खा लिया, सो 2 से 3 घंटे बॉडी को उसको पचाने में लगते हैं, यानी कि उसको एनर्जी, पूरी बॉडी की बहुत सारी ताकतें वहां लगती है आपको खाने को जो है पाचन करने में। 10 बजे खाना खाया तो सोचिए 2 से 3 घंटे, यानी कि 1 से 2 बजे के बाद आपको नींद आना स्टार्ट होगा। नेचुरल मेटा मेलाटोनिन जो है वो प्रोडक्शन हो जाएगी। पेट खाली होता है ना भाई, हमारी अंधश्रद्धा है कि खाली पेट नींद नहीं आती है, गलत फहमी है। सोने के लिए जो चीज हमें चाहिए, मेलाटोनिन, वो तभी बढ़ेगा हमारी बॉडी में जब हमारा पेट खाली होगा। यानी आपका पेट खाली है तो 2 घंटे के बाद मेलाटोनिन हाई रेस होगा, यानी कि 8 बजे खाना खाया तो अप्रोक्सीमेटली 10 बजे के बाद आपके ऊपर लोग नाच रहे होंगे, फिर भी आप सो गए होंगे। एनर्जी रीडायरेक्ट टू द रिपेयर, यानी कि जब आप डीप स्लीप में जाते हो, गहरी नींद में, गहरी नींद आप में से मुश्किल 3% लोगों को आती हो, और वो जब गहरी नींद आती है ना बॉस, तभी बॉडी के अंदर रिपेयरिंग काम होता है। तो आप अगर रोग मुक्त होना चाहते हो तो आपके लिए गहरी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, और गहरी नींद तभी आएगी जब आप खाना 8 बजे से पहले खाओगे, तभी मेलेटोनिन सीक्रेट होगा, तभी इंसुलिन जो है वो अपना काम, यानी मेटाबॉलिज्म संतुलन जो पूरी बॉडी का होगा वो तभी हो पाएगा। रिसर्च हुआ कि 73% लोग जैसे ही जल्दी खाना स्टार्ट कर दिया उनका
हर चीज इंप्रूव होने लगी। स्लीप, सोना, एक इंसान को अगर 7 से 8 घंटा अच्छी नींद आ जाए, 3 महीने के लिए उसकी बीमारी 0 हो जाए। आपको शायद बिलीव नहीं होगा, लेकिन एक इंसान अगर 7 से 8 घंटा अच्छी नींद ले तो उसका मिनिमम 2 से 3 किलो वेट कम होगा, बिना कोई एक्सरसाइज, बिना कोई डाइट। मेरे खुद के थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट हैं जिनका वेट कम हो रहा है, जिनका डायबिटीज कम हुआ है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ है, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, साइकेट्रिक दवाइयां ले रहे थे, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स, बाल के प्रॉब्लम्स, स्किन, किडनी, कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा फायदा 8 बजे से पहले खाने का क्या है पता है? आप सुबह उठते ही अपने आप को एनर्जी, एक कहते हैं ना कि फुल ऑफ एनर्जी फील करोगे। आंख खोलते ही आपको मन करेगा कि मैं कुछ करूं। इसके पीछे की वजह क्या है? सेल्यूलर रिन्यूअल। ओवरनाइट फास्टिंग की वजह से ऑटोफेजी और रीजनरेशन ऑफ सेल्स, रिपेयरिंग होता है। ये 3 चीज क्या है? 12 से 11 घंटे, 10 घंटे का फास्टिंग की वजह से हमारा जो स्टोरेज, जो फैट टिश्यू है, जो कोलेस्ट्रॉल, यहां वहां सब कुछ गंदगी पड़ी हुई है, उसका ऑटोफेजी, खुद सेल अपना कचरा खुद खा लेंगे, वहां से एनर्जी जनरेट कर लेंगे। दूसरा, मेटाबॉलिक रेस्ट। मॉर्निंग में कॉर्टिसोल, यानी कि आपने मेटाबॉलिक रेस्ट दिया, इसलिए मॉर्निंग में कॉर्टिसोल है वो ऊपर, बहुत ऊपर उठेगा, और इसीलिए आपको एनर्जेटिक, पॉजिटिव, अच्छे थॉट्स आना, मेंटल क्लियरिटी, मुझे क्या जिंदगी में करना है, मुझे क्या आज करना है, मुझे कल क्या करना है, एक पावर बूस्टर मिलेगा, आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी। दिस इज द पावर ऑफ अर्ली ईटिंग। अर्ली डिनर मेटाबॉलिक कंडीशन और नेचुरल वेट बैलेंस का काम करता है। मैंने बताया ऑलरेडी आपको कि नियर बाय 2 to 3 kg वेट आपका अर्ली खाने की वजह से, अच्छी नींद आने की वजह से हो जाता। 12 घंटे आप कुछ नहीं खाओगे तो ऑफ कोर्स आपकी जो रिजर्व है, आपकी ऐसी फैट है जो डिसॉल्व ही नहीं होगी एक्सरसाइज से, वो डिसॉल्व होने लगेगी, जल्दी से आपका टमी डाउन होगा, थाई की चर्बी कम होगी। लोअर नाइट टाइम इंसुलिन, रिड्यूस ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग द इवनिंग आवर्स, प्रिवेंट फैट स्टोरेज। यानी इंसुलिन अगर आपका 8 बजे से पहले खाना खाया तो स्पाइक ही नहीं आएगा, यानी कि इंसुलिन बढ़ेगा ही नहीं। अब आपने आइसक्रीम खा लिया, इंसुलिन बढ़ा, फैट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, थायराइड बढ़ेगा। आप समझ रहे पूरा साइंस क्या है? इंप्रूव लैप्टिन सेंसिटिविटी। ये ऐसा एक हार्मोन है जिसका फंक्शन है इफेक्टिवली नाइट में होता है, और नेचुरली वो रेगुलेट करता है एपेटाइट सिग्नल को। तो अगर आप 8 बजे से पहले खाएंगे तो ही इसका काम होगा। 8 बजे से पहले खा लिया, अर्ली सो गए, तो लेट नाइट खाने की तो बात ही नहीं आएगी, स्नैकिंग की बात नहीं आएगी, और इसी वजह से आपका वेट रिड्यूस होगा। अर्ली खाना, 8 बजे से पहले खाना, गिव योर गट टाइम टू वर्क। क्या काम करना होता है? डाइजेशन। 8 बजे से पहले खाने से डाइजेस्टिव एंजाइम आर मोस्ट एक्टिव इन द अर्ली इवनिंग, लेट इवनिंग में नहीं होते हैं, तो पचेगा ही नहीं, फिर गैस, एसिडिटी, अपचा, फैटी लीवर, कॉन्स्टिपेशन, इस सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही है। टेक पोस्ट मील वॉक, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट खाना खाने के बाद छोटा मोटा वॉकिंग कर लीजिए। अपराइट फॉर द 2 आवर्स, खाने के बाद तुरंत सो गए, आपको सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होगी। ओवरनाइट गट रेस्ट, यानी कि अगर आपने अर्ली खा लिया तो पूरी रात आपका जो मुंह से लेके एनस तक, यानी कि पूरी इंटेस्टाइन है, पूरा आपका गट है,
वो रेस्ट में रहेगा, और इस वजह से आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी, मॉर्निंग रूटीन प्रॉपर होगा, आपका वॉशरूम जाना, आपका पेट साफ होना अच्छा हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 83% लोगों को जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, ओबेसिटी है, आर्थराइटिस है, जॉइंट्स पेन है, या जितनी भी मोर देन 3000 क्रॉनिक पुरानी बीमारियां है भारत देश में, उसके पीछे की वजह है रात को 7 बजे के बाद खाना खाने। तो आप 8 बजे के बाद खाना नहीं खाओगे तो सबसे पहले तो ये है कि आपका ये इंप्रूवमेंट होने लगा, यानी कि इन सभी बीमारियों से आप धीरे धीरे मुक्त होने लगोगे। एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू फॉलो दिस थिंग। 5 प्रैक्टिकल हैबिट्स आप अपनी लाइफ में अपना लीजिए। पहले भाई एक तो अलार्म सेट कर लीजिए अपने मोबाइल में कि मुझे इतने बजे 8 बजे से पहले खाना खाना है। बैलेंस मील रात को खाना लीजिए, ज्यादा फाइबर, ज्यादा मिनरल्स, ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स। रात को गाड़ी आपको पार्क करनी है पार्किंग में, तो उसमें सबसे कम क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि रात को आपको पेट्रोल डीजल नहीं डलवाना। अब ये छोटे छोटे बदलाव अगर आप लाएंगे तो आप सोचिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम जो आपके शरीर में, उससे आप मुक्त हो सकते हो। तो चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को कि आप ये चैलेंज जरूर से एक्सेप्ट करें। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर 1 मंथ, देखिए बहाने तो बहुत सारे मिल जाएंगे, सर मैं फ्री ऑफिस ऑफिस में ही फ्री 9 बजे होता हूं, तो भाई डब्बा लेके जाओ, डब्बा मंगवाओ। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ में बच सकते हो, यूटर्न ले सकते हो। एटलीस्ट 1 महीने के लिए आप फील करके देखो, बाद में आपको 8 बजे के बाद खाने का मन नहीं करे। कौन कौन ये चैलेंज 1 महीने के लिए एक्सेप्ट करता है, हाथ ऊपर करे। जो भी एक्सेप्ट करना चाहता है 8 बजे के बाद खाना नहीं। मैं कहूंगा कि भी यू कैन अरेंज, यू कैन डू एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है कि आपको अपना खाना मंगवा सकते हो, या फिर कि पहले से ही अरेंज करके रखो। इतने सारे फायदे हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, आपको नींद अच्छी आने लगेगी, और नेक्स्ट मंथ आपको सम्मानित किया जाएगा। मैं चाहूंगा अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें लिखना है कि यस आई एक्सेप्ट द चैलेंज, कि मैं 8 बजे के बाद खाना नहीं खाऊंगा, कोई भी फूड नहीं, पानी के अलावा और कुछ नहीं। साइंटिफिकली मैंने प्रूवन कर दिया है, खाने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं है, चने खाने की जरूरत नहीं है, दूध पीने की जरूरत नहीं है, एप्पल खाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ये एक्सेप्ट करते हो तो प्लीज प्रीमियम ग्रुप में जरूर से लिखिएगा, नंबर 1। नंबर 2, इस चैलेंज में करना क्या है, आपको खाना किसी भी कंडीशन में 8 बजे से पहले कंप्लीट करना है। आपका खाने का फोटोग्राफ विथ टाइमिंग डेली भेजना है आपके पर्सनल ग्रुप। आपके पर्सनल ग्रुप में हमारी टीम वो चीज ऑब्जर्व करेगी कि आप डेली 1 महीने के लिए 8 बजे से पहले अपना डिनर कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं। अगर आपका खाने का फोटो ही 8 बजे आ रहा है तो इसका मतलब ये कि आप खाते खाते 8:30 बजा देंगे। तो आपका खाने का फोटो 8 बजे से पहले आना चाहिए। सिंपल है, लेकिन इसके थाउजेंड्स ऑफ बेनिफिट्स। मेरे एक पेशेंट है, बहुत सारे लोगों, बहुत सारे डॉक्टर से, बहुत सारी जगह से उन्होंने साइकेट्रिक मेडिसिन, नींद के लिए, एंजाइटी के लिए, और ऐसी एंजाइटी उनकी कि अगर घर में वॉशरूम में भी जाना तो कहां कोई बैठना चाहिए बाहर, तो ही वो वॉशरूम जा। एक छोटा सा ये बदलाव, उनकी दवाइयां जीरो होगी, उनकी एंजाइटी जीरो होगी। ऐसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ओबेसिटी जैसी तमाम बीमारियों का एक ही सॉल्यूशन है। और ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो ऑलरेडी हमारे बुजुर्ग ने, हमारी अगली 2 पीढ़ी ने ये सब कुछ कर चुके हैं। आपके दादा दादी सोचिए 7 बजे से पहले खा लेते थे, 9 बजे से पहले, 8 बजे से पहले सो जाते, और इसीलिए उनको ऐसी कैंसर जैसी बीमारियां, डायबिटीज जैसी बीमारियां, या तो फिर जितनी भी बीमारियां हैं वो नहीं थी। ये
एक ट्रेडिशन गलत वे में हमने बना दिया। अगर आप सुधरोगे तो आपका परिवार, आपके आसपास वाले, आपके अगली पीढ़ी, आपकी पिछली पीढ़ी धीरे धीरे चेंजेस लाएंगे। मैं बता ऑलरेडी बहुत सारे सेशन में बता चुका हूं आपको, कहने से कोई नहीं करता है, करने से, आपके करने से बहुत सारे लोग करेंगे। ये बदलाव सिर्फ आपके लिए नहीं है, सिर्फ आपके परिवार के लिए नहीं है, सिर्फ आपके समाज के लिए नहीं है, सिर्फ आपके शहर के लिए नहीं। आप मेरे किसी भी दोस्त को पूछ लो, आप मेरे किसी भी फैमिली मेंबर्स को पूछ लो, नो वन विल ऑफर मी एनी काइंड ऑफ फूड। मैं रात को खाना ही नहीं खाता हूं, मैं कोई ऑफर ही नहीं कर सकता, चाहे मैं मेरे ससुराल में क्यों ना चाहता। हिम्मत ही नहीं होती उनकी किसी की, क्योंकि इतने साल से कर रहा हूं, उनको पता है कि भाई चाहे किसी की भी कसम दे दे मुझे, तो थोड़ा टाइम लगता है ना। आप देखिए, आप आज करना स्टार्ट करोगे ना, तो आसपास वाले नहीं, आपके बच्चे ही आपका परीक्षा लेंगे, मम्मी थोड़ा सा खा लेना, क्या फर्क पड़ता है, कौन देखता है, तूने फोटो तो भेज ही दिया है प्रीमियम ग्रुप में, तुझे अपने ग्रुप में तो फोटो भेज ही दिया है, किसी को नहीं पता चलेगा, खा ले। लेकिन जब आप बोलेंगे ना नहीं, तब परिवर्तन स्टार्ट हो जाए, तब चैलेंज रियल में आपने दे दी। 1-1.5 महीने के बाद आप देखना, आपके बच्चे जिस टाइम पे खा रहे हैं, आपके आसपास वाले जिस टाइम पे खा रहे हैं, वो 1 से 1.5 घंटा पहले खाने लगे। मैं जहां भी जाता हूं वहां पे खाना कभी भी 9 बजे 10 बजे से पहले नहीं बनता, लेकिन मैं जहां पे जाता हूं वहां पे खाना 8 बजे से पहले खत्म हो जाता है, किचन बंद हो जाता है। और ज्यादातर जिस घर में जाता हूं वहां की लेडीज, वहां के फीमेल जो खाना बनाते हैं, वो यही कहते हैं, सर आप डेली आया करो ताकि हम 8 बजे से पहले फ्री हो जाए। सोचिए, आपकी घर की वो लेडीज इतनी खुश हो जाती है डॉक्टर उमेश गुर्जर की एक हैबिट से, आपकी उस हैबिट की वजह से आपका बॉडी कितना खुश होगा, आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स कितने खुश होंगे। आप सोचिए सर, कि आज 8 बजे से पहले फ्री में, अब देखिए शीतला साधन होती है ना, तो हम पहले से खाना बना के पहले जल्दी जल्दी सारा खत्म हो जाता है। कितना अच्छा, आपका घर कितना सुंदर दिखता है उस दिन, आपका किचन कितना अच्छा दिखता है, साफ सुथरा, आप कितने स्माइली होते हैं, थकावट नहीं होती है। बट आप ही सोचो, रात को 11 बजे में आपके घर में एज ए गेस्ट आया और आपने गलती से पूछ लिया, गलती से, कि आप जो है खाना खाएंगे। अब मैंने बोल दिया हाँ खाऊंगा। अब 11 बजे आप खाना बनाने बैठ रहे हो, 2 या 3 चीज बना रहे हो, एक ही इंसान के लिए बना रहे हो, 1 घंटा खाना बनाया, 1 घंटा हमने खाया, 12-1 बज गया। अब आप सोचिए कि आप एक तो थक गए खुद, किचन आपका गंदा पड़ा हुआ है, साफ सफाई का टाइम नहीं है, नींद लेट आएगी, सुबह जल्दी उठना है, नेक्स्ट डे थकावट। सेम चीज हमारी बॉडी के साथ होता है जब 8 बजे के बाद हम कोई भी चीज खाते हैं। ये बहुत गंदी चीज है, दिमाग है ना, वो बहुत ज्यादा गंदी चीज है। उसको जैसी हैबिट आप डालोगे वैसी हैबिट होगी। अहमदाबाद में भी बहुत सारी मार्केट है जिसके नाम आपने सुने होंगे, आपके शहर में भी बहुत सारी मार्केट है जिसके नाम आपने सुने होंगे, आप गए भी होंगे, जहां पे रात को 11 बजे के बाद ही सारे फास्ट फूड मिलना स्टार्ट होते हैं। तो यहां पे देखिए, चॉइस आपकी है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में जीना बहुत जरूरी है, अगली पीढ़ी के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, शहर के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए। आप एक स्वच्छ होंगे, रोग मुक्त होंगे, उससे बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नहीं लेकिन कुछ तो करने की प्रेरणा जरूर से मिली। सिंपल थिंग इज दैट, मैं चाहूंगा आप 2 चीज जरूर से लिखे। एक तो अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो पूरा महीना, यानी कि 13 तारीख से लेकर नेक्स्ट 13 तारीख तक आपको रात को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। उसका सिंपली डेली फोटो भेजना है और अगले महीने उनको हम विनर घोषित करेंगे। वो अपना फीलिंग शेयर करेंगे कि पहले क्या था, अभी क्या है, 1 महीने में चेंजेस क्या क्या उनके अंदर आए। और दूसरा, लास्ट में इतना ही कहूंगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, वो भी जरूर से प्रीमियम ग्रुप्स में जरूर से बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसा लगा। एंड अंत में इतना ही कहूंगा, थैंक यू सो मच कि आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला, मेरे साथ जुड़े।
हेल्थ के लिए जोड़े, वेल्थ के लिए जोड़े, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपकी और मेरी बात नहीं है, पूरे समाज, सोसाइटी, शहर, राज्य और देश की बात है। थैंक यू सो मच, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। विल वेट फॉर योर मैसेज, योर रिप्लाई कि आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। दूसरा, चैलेंज एक्सेप्ट के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। अगले महीने फिर से इसी सेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, प्लीज टेक केयर, प्लीज फॉलो द डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड टेक। बाय बाय।